Dear student, Assalamu alaikum. It's chapter 2, Vectors and Equilibrium. In our previous lectures, we studied that vectors can be added, subtracted, and multiplied under specified rules. So, addition, subtraction rule, that was graphical method, that was rectangular component method, has already been discussed. Now we are going to discuss scalar or dot product of two vectors. Vector product can be extended to 3 also, but here we are focusing on the product of two vectors. The first of which is scalar or dot product of two vectors. What a scalar or dot product of two vector is. The multiplication of two vectors which results in a scalar quantity is called scalar product or dot product of two vectors. जब दो वेक्टर्स को मैंने इससे पहले आपने एक टॉपिक पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, वो अलग चीज़ थी, ये वेक्टर टू वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जाए और उन दो वेक्टर से जो प्रोडक्ट वेक्टर आता है वो अगर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर with another vector and the resultant vector is a scalar, then it is called a scalar product of two vectors. Or the product of magnitude of first vector, the product of magnitude of first vector and the component and the magnitude of the component of second vector along the direction of the first vector, which we also call projection or shadow of the second vector on first vector. पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्लियर और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट, वो टुकड़ा जो पहले वेक्टर का पैरेलल है, जो पहले वेक्टर पे पड़ा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द शेडो और प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर along the direction of the first vector is called scalar or dot product of two vectors. Since a dot is placed between the two vectors, that is why it is also called dot product of two vectors. इसको dot product भी कहते हैं। अब आते हैं, हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये देखो, ये वेक्टर है f1 है which is lying along x axis. This is f2 which is making an angle theta with f1. f1 है और ये f2 है। f1 और f2 के दरमियान ये आपको कर्सर दिखाई दे रहे हैं, इसके दरमियान एंगल क्या है? थीटा है। कंसिडर टू वेक्टर्स f1 एंड f2 मेकिंग एन एंगल थीटा, बट थीटा शुड लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। थीटा जो है 0 से लेकर 180, यानी स्मॉलर वाली एंगल आप लोगे। दो एंगल बना रहे हैं, f1 और f2 के दरमियान दो एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं। एक छोटी वाली एंगल है देखो, और एक ये बड़ी वाली एंगल है। तो रूल ये है कि आपने छोटी वाली एंगल को लेना है। तो इसीलिए जब भी ये रूल अप्लाई करते हो तो उसकी लिमिटेशंस ये हैं कि थीटा मस्ट लाई बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। तो आप देखो, ये f1 है, ये f2 है, इनके दरमियान एंगल थीटा है। दिस इज़ f1, दिस इज़ f2, द एंगल बिटवीन टू इज़ थीटा। नाउ आई वांट टू टेक I want to take the dot product of f1 and f2. So f1 dot f2 means f1 is the first vector and f2 is the second vector. If it is f2 dot f1, then f2 is the first vector, f1 is the second vector. So what we define? By definition, scalar product, what a scalar product is? Scalar product of two vector, scalar product of two vector is equal to magnitude of first vector multiplied by, look, this is the multiplication symbol, multiplied by the magnitude of the component of second vector along the direction of first vector.
or you can say the x component of second vector or the x component of second vector or the shadow of the second. यानी क्या मतलब हो गया, स्केलर प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वेक्टर. तो अब देखो मैं f1 डॉट f2, तो उसमें पहला वेक्टर कौन सा है, f1 है, दूसरा कौन सा है, f2. तो f1 का मैग्नीट्यूड विच इज़ f1 और f2 का वो कंपोनेंट जो कि एक f1 पे पड़ा हुआ है, f1 का पैरेलल है, वो f2x है. ज़रा डायग्राम को देख लो. ये देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तो आपने किए हैं, ये f2 है, इस f2 का x कंपोनेंट क्या है, ये है, ये है, ये f2x है. क्या है, f2. तो हमने डॉट प्रोडक्ट का क्या डिफिनीशन की थी कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर और दूसरे वेक्टर का x कंपोनेंट. तो क्या आ गया, f2x. क्या आ गया, f2x, क्योंकि f2 का x कंपोनेंट क्या है, f2x है, जो कि f1 का पैरेलल है. तो ये आ जाएगा f1 और f2x आपको पता है f2 cos थीटा के बराबर हैं. तो ये आ जाएगा f1 f2 cos थीटा, f1 f2 cos थीटा. अब अगर आप f2 डॉट f1 करना चाहते हैं तो आपका पहला वेक्टर f2 हो गया, तो f2 का मैग्नीट्यूड और f1 का x कंपोनेंट जो है, ये देख रहे हो, ये डैश डैश लाइन से देख रहे हो, f1 है तो f1 का x कंपोनेंट क्या है, इधर ये f1x है, जो कि f2 का क्या है, पैरेलल है, f2 का पैरेलल है. तो आप ज़रा देख लो ये क्या आ जाएगा, f2 f1 cos थीटा आ जाएगा, तो इससे f1 f2 cos थीटा. अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, तो अगर आप आर्डर को रिवर्स भी कर दें रिजल्ट सेम आता है. यानी f1 डॉट f2 इज इक्वल टू f2 डॉट f1, मीनिंग दैट if you take the dot product of two vectors in the forward direction or in the reverse direction, the result will be the same. रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगी. दैट इज़ व्हाट वी कॉल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इसको कहते हैं, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. बस सिंपल बात हो गई कि डॉट प्रोडक्ट ये होता है कि वेक्टर डॉट वेक्टर अगर आ गया स्केलर, वेक्टर डॉट वेक्टर अगर आ गया स्केलर, तो ये क्या कहलाएगा, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. या पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का वो कंपोनेंट जो कि पहले वेक्टर पे पड़ा हुआ है, या पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का x कंपोनेंट. आसान कर लूँ. और तो आपने पहले क्या किया, अगर f1 डॉट f2 है तो f1 मल्टीप्लाइड बाई f2x हो जाएगा, और अगर f2 डॉट f1 है तो f2 मल्टीप्लाइड बाई f1x हो जाएगा. बट बोथ विल यील्ड द सेम रिज़ल्ट, दोनों से एक ही रिज़ल्ट आएगी. ये है आपके पास स्केलर प्रोडक्ट के बारे में कि वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए बाय दिस स्पेशल टेक्निक, देन इट विल गिव यू अ स्केलर प्रोडक्ट. नाउ एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, व्हाट आर द वर्क डन. ए वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, force is a vector quantity and displacement is a vector quantity. So on this side force and displacement, on this side work. So the product of force and displacement is work, which is a scalar quantity. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बहुत वेक्टर क्वांटिटी हैं, जबकि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी. किसी ने ये नहीं कहा कि 5 जूल का काम मैंने शिमाल की तरफ कर दिया, 5 जूल का काम मैंने जनूब की तरफ कर दिया. नो वन वुड हैव सेड लाइक दैट. सो पावर जो है, पावर F डॉट V, फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. सो पावर इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले आगे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें हैं. तो F डॉट V फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट है ये. तो यहाँ पर फोर्स और वेलोसिटी जो है दे आर वेक्टर्स, बट द पावर इज़ अ स्केलर. क्योंकि बल्ब जो है, किसी ने नहीं कहा होगा कि 20 वाट का बल्ब जो है एलॉन्ग एक्स एक्सिस या एलॉन्ग वाई एक्सिस और 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, किसी ने नहीं कहा होगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, that will be your study in the second year. Electric flux is the product of electric field intensity and vector area ये electric flux है. So electric field intensity and vector area are both vectors, but their product is a scalar quantity, which is electric flux. In a similar fashion, if you say, see, kinetic energy, that is equal to half mv dot v. mv dot v, that is a kinetic energy. So half mv dot v, that is velocity dot velocity, that is a scalar quantity. ये आपके पास क्या है, kinetic energy is a scalar quantity, but velocity, the couple of velocity is a scalar quantity, but when you multiply together, that will give you v square, which is a scalar quantity, which is a scalar quantity. v individually is vector, v individually is vector, but the square of, यानी v dot v square का 0 आ जाएगा तो v square आ जाएगा, which is a scalar quantity. So kinetic energy is
a scalar quantity. Now come to the characteristic of scalar product. What are the properties, what are the characteristics of a scalar product? Scalar product के characteristic क्या हैं, इसके properties क्या हैं? Now we are going to discuss one by one. First property is maximum result. When the scalar product give maximum result. The scalar product will give us maximum result if the two vectors are parallel to each other. If two vectors are oriented along the same direction, or two vectors are making an angle theta is equal to 0 degree with each other, then in this case the scalar product will give you optimum or maximum or most result. जब भी दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट जो है सबसे ज़्यादा रिजल्ट देगा. अगर थीटा 0 के अलावा कोई और होगी तो वो रिजल्ट मैक्सिमम से कम होगी. तो देखो, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम if they are parallel to each other, theta between them is 0. f1 dot f2 is equal to f1 f2 cos 0 and cos 0 is equal to 1, so you will get f1 f2. So that will be the optimum result. ये आपको क्या देगा? Optimum result देगा. Now if you take the scalar product of a vector with itself, the scalar product of a vector with itself, then it will be a square cos 0, because a and a are along the same direction, so the angle between two similar vector is 0 degree, so you get a square. So you can say the dot product of a vector with itself gives the square of the magnitude of a vector. जब भी आप सिमिलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उससे जवाब स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आएगा. जिस तरह ए डॉट ए आपने किया उससे ए स्क्वायर आया. अब हम आते हैं यूनिट वेक्टर्स की तरफ आते हैं कि अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी एन डॉट एन. एन नॉर्मल वेक्टर इसके दरमियान एंगल क्या होगी? 0 होगी. ए डॉट ए यूनिट वेक्टर या आई डॉट आई यूनिट वेक्टर या जे डॉट जे यूनिट वेक्टर, या कि मीनिंग दैट दे आर सिमिलर, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर. व्हेनेवर देयर इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर you will get 1, because you will get unit vector has got magnitude 1. तो 1 square cos 0, तो 1 square is 1 and cos 0 is also 1. So from this you can say that the dot product of a unit vector with itself is equal to 1. अगर आप यूनिट सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उससे आपके पास क्या आएगा? 1 आएगा. सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर विद itself or a unit vector with itself will give you 1. So these results should be kept in mind while solving problems. So this is the application number, this is the characteristic number 1. Negative maximum result, when the scalar product will give the negative maximum result. Whenever the two vectors are anti-parallel to each other, whenever the two vectors are anti-parallel to each other, that will give you negative maximum result. I say negative maximum. Scalar product will give you negative result if the angle is greater than 90 to 180 degree. If the angle is greater than 90 to 180 degree, but when will be negative maximum? Negative maximum, negative optimum, negative highest result will be obtained if the two vectors are anti-parallel to each other. So ये देखो f1 dot f2 cos 180 degree, तो you will get minus f1 f2 from it.
So your all the results should be sandwiched between theta is equal to 0 to 180 degree, meaning that at 0 you get positive maximum, at 180 negative maximum, and for other angle the result will lie between these two optimums, तो ये देखो, तो स्केलर प्रोडक्ट ये देखो पॉजिटिव रिजल्ट स्केलर प्रोडक्ट कब देगा, अगर एंगल 0 डिग्री से लेकर 90 तक हो। पॉजिटिव रिजल्ट कब देगा, अगर 0 से 90। फिर पॉजिटिव मैक्सिमम कब देगा, अगर एंगल क्या हो, 0 हो। अगर एंगल दो वेक्टर के दरमियान 0 हो, मैंने क्लियर कर दिया कि 0 से लेकर 90 तक कास की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव होगी। लेकिन मैक्सिमम कब होगी इनमें से, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं। इसी तरह स्केलर प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगी, अगर थीटा ग्रेटर देन 90 है टू 180, तो फिर कास की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर में डाल लो cos 91, cos 92 अप टू 180, तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन मैक्सिमम नेगेटिव कब मिलेगा, जब थीटा क्या हो, 180 डिग्री हो। सो दैट इज व्हेन द टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, the result will be negative maximum. Now the example of that, work done by force of friction is always negative. Friction is always opposite to the displacement. You know, work is equal to F dot D, force of friction and displacement. If I am pulling the body like that, force of friction is in opposite direction, resistive force is in opposite direction, so that will yield a negative work. So meaning that a part of your energy is being wasted in overcoming the force of friction. Now come, work done against gravity जो है, that is also a sort of negative work. When I am going to lift a body upward, displacement is in upward direction but weight is directed downward. So the angle between, so displacement in upward, weight in downward. Weight is always directed towards the center of the earth. So from that mgd will give you minus यानी mgd cos 180, cos 180 is minus 1, तो minus mgd. So that is the example of negative work. Now when we will get 0 result from scalar product, 0 result, when the two vectors are perpendicular to each other, you see angle is 90 degree, angle is 90, when the two vectors are, you see are perpendicular to each other, the angle between the two vectors is 90 degree, the scalar product will be 0. So the dot product of two vectors will be 0 if the vectors are at right angle to each other, orthogonal to each other, perpendicular to each other, or theta is equal to 90 to each other. Perpendicular, orthogonal, orthonormal, या theta is equal to 90 degree, all these words can be used. So f1 dot f2 will give you f1 f2 cos 90 and the result is 0. Now the example of this, work done by normal force. You know, normal force is always perpendicular to the displacement direction. You see, if I am moving a body like that, the normal force is like that, you see displacement is like that or like that. So this is a displacement and normal force is that. If I move a body like inclined plane, so this is a displacement but normal is also perpendicular to the displacement. Here you see that the work done will be in d cos 90 degree and that will give you 0 joule. So work done by normal force is always 0. याद रखना, जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, कुछ भी हो, डॉट प्रोडक्ट उसका क्या आएगा, 0 आएगा. सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ये ऑलरेडी एमसीक्यूज वगैरह में आते हैं. वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0. सेंट्रीपिटल फोर्स में फोर्स हमेशा क्या होता है, फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर होता है. और ये देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होता है, वेलोसिटी डी बाई टी के बराबर होता है. तो फोर्स और डी के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है. सो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 बिकॉज फोर्स के डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नज़र नहीं आता. ये वर्क के चैप्टर में हम मज़ीद क्लियर करेंगे. Also, scalar product of two dissimilar unit vector is 0 because they are perpendicular to each other. I dot j, j dot k, I dot k, k dot I, k dot j, जो भी हो j dot I, that will be equal to 1 cos 90. यानी I का मैग्नीट्यूड 1 है, j का मैग्नीट्यूड 1 है और cos 90 उनके दरमियान एंगल है. तो हर दो यूनिट वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. सो
डिसिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा, 0 देगा। ये चीज़ें आपकी जो है इस्तेमाल होगी क्वेश्चन सोल्यूशन में, क्वेश्चन के सोल्यूशन में। Commutative property we have discussed already before. Commutative property, if you multiply the vectors from forward direction or from the reverse direction, the result will be the same. We have done in the early section of this lecture, so check it out. इसको आप क्या कर लो, चेक कर लो। चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन है। अच्छा जी, अब हम आते हैं तो अब नेक्स्ट जो है आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो आएगा आपके पास गान उसके आपने देखा कि जो स्केलर प्रोडक्ट हैं ये कम्यूटेटिव हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई इट फ्रॉम फॉरवर्ड डायरेक्शन और फ्रॉम द रिवर्स डायरेक्शन द रिज़ल्ट विल बी द सेम। ये देखो, इसका आर्डर चेंज करने से उसका वो चेंज नहीं होगा, कोई उसमें चेंज नहीं आएगी। ये थी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास। जब ये आपके पास क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी, तो उससे हम नेक्स्ट वाला 6 प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन 3 डायमेंशन अगर आपके पास हो, अगर 2 वेक्टर्स हैं 3 डायमेंशन में हो, हमने तो 2 डायमेंशन को रिस्ट्रिक्ट किया था। F1 है F1xi प्लस F1yj प्लस F1zk हैं, और दूसरा जो है F2 है F2xi प्लस F2yj प्लस F2zk हैं। देन देयर डॉट प्रोडक्ट, उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, F1 डॉट F2, तो ये आ जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। इससे आपके पास 9 कंपोनेंट आ जाएंगे। F1x F2x i डॉट i 1 के बराबर है। इससे पहले आपने देखा और हमने डिस्कस किया, ठीक है। और j डॉट जे 1 के बराबर है तो उससे कुछ आएगा, क्योंकि i डॉट जे 0 आएगा तो ये वाला फैक्टर, i डॉट के 0 आएगा तो ये वाला फैक्टर। F1yj है तो j डॉट i क्या आएगा, 0 आएगा। F1y F2y j डॉट जे आ रहा है तो j डॉट जे से 1 आता है तो क्या आएगा, F1 F2y आ जाएगा। और नेक्स्ट वाला जो है F1z है, z कंपोनेंट के साथ कहें तो k डॉट के क्या है, 1 आएगा। बाकी कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, आपको 0 दे देंगे, बिकॉज i डॉट जे, j डॉट के और k डॉट i वगैरह ये सारे जो हैं आपको 0 देते हैं। उससे पहले ऊपर हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की। तो इसका क्या मतलब हो गया कि डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि the sum of the product of corresponding component, the sum, see this is the sum of the product of corresponding component, product corresponding यानी x with x, y with y and z with z. So whenever you got MCQs type of question, just multiply x with x, y with y, z with z, you will get the scalar product and add them together, you will get the scalar product of that one. So there is a simple way of solving MCQs. So F1 dot F2, that is also defined as the sum of the product of the corresponding component is called the sum of the product of the corresponding component is called scalar product of 2 vectors. Now come to another thing which we are going to see, that is associative property. Scalar product obeys associative property, meaning that if a vector is multiplied f2 plus f3 f plus f4 plus f5 whatsoever, so this f1 will contribute to f1 and f2 and f1 and f3. So f1 dot f2 plus f1 dot f3, that is what we call associative property. Associative. Now how you will find angle, from the scalar property, स्केलर प्रोडक्ट से 2 वेक्टर्स के दरमियान आप एंगल को कैसे निकालोगे, तो ये ज़रा देख लो। इसको अगर आप देख लें, एंगल को हम इस तरह निकालेंगे कि F1 डॉट F2 इज इक्वल टू F1 F2 cos थीटा विल बी इक्वल टू F1 डॉट F2 F1 बाई F2 आ जाएगा, तो थीटा cos इनवर्स F1 dot F2 by F1 F2 आ जाएगा. So this is how you can find the angle from that one. In your text there will be A and B. Instead of F1 there will be A, and instead of F2 there is B. This is your next new जो आपका 2020 का नया एडिशन आ गया है. सिर्फ उसमें ये है कि नोटेशन चेंज है, और मैंने कहा कि आपसे मैंने रटामार नहीं बनाना है, आप खुद लगे रहो. F1 की बजाय L1 ले लो, F2 की बजाय L2 ले लो, या
एक को जो आपका दिल करता है, एक को एल ले लो, दूसरे को एम ले लो और फिर कर लो, यही चीज़ आ जाएगी, कोई नई चीज़ नहीं होगी। अब देखो इस पे पॉसिबल एमसीक्यूज़ अगर आपको चंद एक मैं करवा देता हूँ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स 3i माइनस 4j प्लस के एंड 2i प्लस 3k इज़, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो है, एक है 3i प्लस 4j प्लस 3i माइनस 4j प्लस के हैं और 2i प्लस 3k जो है, इसका सिंपल तरीका जो मैंने कहा था कि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करो, i को i से मल्टीप्लाई करो तो ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या आएगा, 6 आएगा, और ये k है तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई बाई, तो 6 प्लस 3 द रिजल्ट इज़ 9। ये देखो इधर हुआ भी है, ये देखो 3i माइनस जे प्लस के और डॉट 2i प्लस 3 डॉट के, और ये आ जाएगा 3i डॉट 2i, और ये मैंने सारा मल्टीप्लाई किया है, लेकिन इससे क्या आ जाएगा, 6 प्लस 3 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। i को i से मल्टीप्लाई किया है, k को k से, बाकी से 0 आएगा क्योंकि i डॉट जे डॉट के डॉट i 0 आता है। सो दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ। अब जनाब ये दूसरा एमसीक्यूज है, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स i माइनस जे एंड i प्लस के इज़, एंगल बिटवीन टू वेक्टर i माइनस जे एंड i। अब देखो आपने क्या किया था कि cos थीटा इज इक्वल टू f1 डॉट f2 डिवाइडेड बाई f1 f2 मैग्नीट्यूड, f1 मल्टीप्लाइड बाई f2 मैग्नीट्यूड। तो वही मैं अप्लाई करता हूँ, ये देखो cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू वेक्टर i माइनस जे डॉट i प्लस के, और इसका जो मैग्नीट्यूड ऊपर वाले का आएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इससे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और इससे क्या आ जाएगा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये पढ़ा हुआ है, ये अगर कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड किस तरह निकाला जाए, fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर। तो ये देखो ये भी 1 है ये भी 1 है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाई √2 क्या आ जाएगा, 2। अब देखो i डॉट i से 1 आएगा, i डॉट के 0 है, j डॉट i 0, j डॉट के 0, तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री है, तो जनाब कास कास कट जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इस तरह इससे एंगल आपके पास आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट जो है अगर आप देखें, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू 3i माइनस 4j प्लस के इज, देख हमने आपको प्रॉपर्टीज़ जो पहले कराई है कि जब भी दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्ट 0 आना चाहिए। तो अब आपके पास ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो वाला वेक्टर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देगा तो वो उसका परपेंडिकुलर होगा। तो अगर आप देखें ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 3 आर 9 और प्लस 16 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या है, ये है, क्योंकि i को i से मल्टीप्लाई करो, j को j से, k को k से, डॉट प्रोडक्ट में मैंने ये पढ़ाया है। तो 3 3 आर 9 प्लस 16 और प्लस क्या, -25 आ जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, -25। तो 16 प्लस 9 से क्या आता है, 25 आता है, तो 25 माइनस 25 क्या आता है, 0 आता है। तो अगर कोई और होता उसके साथ 0 रिजल्ट दे देता तो वो उसका परपेंडिकुलर होता। तो अ वेक्टर परपेंडिकुलर तो उसका क्या है, ये है। अब देखो ये मैंने हैंड्स भी करवा दिए सारे उसके, कि देखो इन दोनों का जब मैंने डॉट प्रोडक्ट ले लिया है तो डॉट प्रोडक्ट उसका क्या आया है, 0 आया है। नेक्स्ट जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ 100 न्यूटन एंड 50 न्यूटन फोर्सेज, डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता। तो ये देखो 100 मल्टीप्लाइड बाई 50 से क्या आता है, मैक्सिमम कब आएगा, जब पैरेलल हो, थीटा 0 हो, 5000, और मिनिमम मैक्सिमम नेगेटिव कब होगा, -5000 होगा। तो 5000 तो हो सकता है, ये भी नहीं है। 3000 किसी एंगल पे हो सकता है, बिकॉज रिजल्ट आपका लाई करेगा 5000 और -5000 के। ये देखो माइनस, ये देखो ये 3000 डबल आ गया है तो उसको माइनस कर दो, ठीक है ना। और ये 5 ये देखो ये आपके पास ये एक्सीड कर रहे हैं मैक्सिमम को, तो ये आपका रिजल्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो है आपके देखें, टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एंड 50 न्यूटन गिव्स 2500 न्यूटन ऑन मल्टीप्लिकेशन, द एंगल बिटवीन देम। तो cos थीटा क्या होता है, f1 डॉट f2 बाई f1 f2 है। तो ज़रा देख लो, आपको 100 न्यूटन है और 25 न्यूटन है और उसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। तो ये देखो डॉट प्रोडक्ट किसका दिया हुआ है, कितना है, 2500 है, ठीक। टू फोर्स में 100 न्यूटन एंड 50 न्यूटन, तो 100 मल्टीप्लाइड बाई टू फोर्सेज ऑफ मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन एंड 50 न्यूटन गिव्स 2500 न्यूटन स्क्वायर ऑन मल्टीप्लिकेशन।
ऑन मल्टीप्लिकेशन। तो ये देते हैं आपको, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2500 बाई 5000 आ जाएगा, क्योंकि f1 डॉट f2 क्या आ जाएगा 5000 आ जाएगा। इस तरह 2500 डिवाइडेड बाई 5000 will give you half, and half is equal to cos 60 degree, and that cos 60 degree, cos theta is equal to cos 60, so cos will cancel, and the result will be theta is equal to 60 degree. So you will be given a different type, sometime you will be asked for projection. For example, f1 dot f2 is given to you, and the magnitude of f2 is given to you, and you are asked to find out the projection of f1 on f2. So simply f1 dot f2 is equal to f1x, f2 आ जाएगा, तो f1x will become f1 dot f2 divided by magnitude of f2. So that will give you the shadow or x component or projection of vector f1. Similarly, if you want to find the projection of f2, so find f2x. f2x will become f1 dot f2 divided by magnitude of f1. So you can get pivot, start asking questions from yourself. You are brilliant, you can do it. Rotate your mind positively, सोचना शुरू कर दो। MCQs कोई मुश्किल बात नहीं होती, ये सोच पे आपकी सोच की अक्कासी करता है। अगर आपने एक दफ़ा ज़हन बना ली कि मुझ पे क्वेश्चन इस तरह आते हैं, आई विल आंसर लाइक दैट, आई विल क्वेश्चन लाइक दैट, आई विल आंसर लाइक दैट, तो ये चीज़ें आप अपने आप में डालो, यू विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह खुश रखे, वालिदैन का ख्याल रखे।